रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने लिस्ट देखा था, लिस्ट इन पाइथन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, हाउ वी कैन प्ले अराउंड द लिस्ट। तो ये वाला पार्ट डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस टपल्स इन पाइथन। तो टपल्स बेसिकली क्या होता है? तो टपल्स एक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ही है, नॉट काइंड ऑफ, ओके, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर बट लाइक लिस्ट। तो जैसे लिस्ट है वैसे ही टपल्स है, ओनली स्मॉल चेंज है यहाँ पे, दैट इज व्हाट द इम्यूटेबिलिटी। तो जिस तरह से हम लिस्ट में न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं लिस्ट के आइटम्स, या फिर हम उसको मतलब अपडेट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ टपल दैट इज नॉट पॉसिबल। एक चेंज है एंड देन फ्यू ऑपरेशंस आर देयर दैट वी कैन डू विद द टपल, सो वी विल सी हाउ इट वर्क्स। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल फाइंड लाइक लिस्ट। तो इसके आइटम्स जो होंगे वो ऑर्डर मतलब क्या होगा? ऑर्डर्ड मतलब लेट्स से हमने एक ऑर्डर में डेटा पास किया 1 2 3 4 5, तो ये सेम ऑर्डर में ही मेंटेन कर लेता है। ओके, इसका ऑर्डर जो है वो मतलब चेंज नहीं होगा, तो ये सीक्वेंस एज इट इज रहेगा। देन हर एक आइटम को एक इंडेक्स असाइन होता है, स्टार्टिंग विद 0। फर्स्ट आइटम विल हैव इंडेक्स 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो इस तरह से इंडेक्सेस असाइन होंगे। ठीक है, देन इम्यूटेबिलिटी एज ए सेड, इसमें और लिस्ट में इतना ही डिफरेंस है कि टपल्स आर इम्यूटेबल बट लिस्ट्स आर म्यूटेबल। वी कैन चेंज द data items value, we can update the items value, we can remove the items from, meaning the values from the list, we can add the new values to the list, but here it is difficult, meaning if we create tuple once, एक बार इस tuple को create किया तो इसको change नहीं किया जा सकता। okay, and then duplicates items, it allows to store the duplicate value also। okay, तो ये characteristics है टपल्स के इन केस ऑफ पाइथन। तो टपल्स को किस तरह से क्रिएट, किस तरह से करना? ऑब्वियसली एज आई सेड, इफ it is a data structure that allows you to store the collection of items, meaning you can store the multiple values in a single variable, the way we were doing in the list। okay, तो similarly हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। okay, so let me open this। okay, not here, I used Sublime। okay, so I will go with the Sublime। सो लेट्स से हमें एक टपल क्रिएट करना है, तो टपल आई विल कंसिडर टी एज अ वेरिएबल, एंड लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, बट टपल के लिए हमें नॉर्मल राउंड ब्रैकेट्स यूज करना है। बस इतना ही डिफरेंस है टपल क्रिएट करने में। देन यू कैन पास द एनी टाइप ऑफ वैल्यू, इट्स नॉट लाइक दैट वी कैन पास द वैल्यूज ऑफ ओनली वन टाइप, like in arrays in other programming। okay, list की तरह ये भी heterogeneous type of data को support करता है। then if I say true boolean type value, then date time value we can pass। okay, but for that purpose we need to import the date time library। we, meaning Python don't support directly date time, so we need to import the external library called date time, and then we can work with the date time data in Python। okay, so this is the one way to create the tuple. Another way is that we can use the list constructor। okay, even if we can use a tuple constructor, not list constructor। if I say print type of t, and if I run this, okay, spelling mistake of function, so it should be print। okay, so it says class of tuple। okay, again I will create the one more tuple with the tuple constructor। I will say tuple constructor is nothing but function in any of the object oriented programming. If you create the class, and then meaning that class will have the one function with the same name itself, that is what nothing but the constructor। okay, so here we have created the tuple constructor, and let's pass the values here in this way। so again the t will be tuple if you run this, so
data type of this T is also tuple. Okay, so these are the two ways to create the tuples. Okay, now how to access? Obviously, tuple supports the indexes. So as I said, first item will have index 0, then in 1 it will keep increasing by 1 until the last item. Okay, and if we use the indexer syntax, let's say if I say print T is the tuple name followed by the index in a square bracket, this is what the indexer syntax. If I say 0, and if I run this, so it will return me the first item of tuple. Okay, so this is the way to access the elements of or items of tuples using index. There is no other way. Then there is something called slicing. Even this is very similar to the list slicing. We have seen list supports the positive and negative indexing. Okay, so in the same way, this tuple also supports the positive and negative indexing. But yes, indexer syntax just said T of, then if you want to start the extractions. Okay, so first argument type is start, then end, and then step, or we can say the increment kind of things. Okay, so this is what the syntax here. In place of start, from which index you would like to start the slicing of data, you can specify. If I say 1, so this will start slicing of data from second element. If I say, let's say if I want slicing until, meaning 2, 3, 4 I want, okay, I don't want this letter. So what I will do, I will pass the index of A. Why? Because in case of Python, last index will be always ignored. Okay, so last index is meaning upper bound, and steps by default step will be 1. If you pass, if you do not pass, then it is not going to matter. But if you want to change the step, you can pass. Otherwise, by default it will be 1, and it is returning me a new tuple. Okay, when you slice out the list, you will get a list, but when you slice out the tuples, you will get a tuple of values. Then let's say here first index is 2, second index is 3, third index is 4, and we don't take, meaning Python don't consider the last value, meaning upper bound index, so that will be ignored. This is how the forward direction slicing works, very similar to the list slicing. We have seen each and every possible scenario with list. Okay, let's say if you want to begin the slicing with first index, so don't pass the index. Okay, you can skip that and just pass the last index. Okay, where meaning whatever will be the last index you would like to consider, and then if you run this, so if you don't pass anything, okay, यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, तो सपोज मान लीजिए ये 0 से, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होगा. ओके, एंड देन जो इंडेक्स आप एज अ सेकंड आर्गुमेंट पास करोगे वहां तक वो स्लाइसिंग कर लेगा. ओके, देन लेट्स से आपको बिगिनिंग का पता है, मतलब लेट्स से सेकंड इंडेक्स से आपको स्लाइसिंग स्टार्ट करना है, बट एंड तक जाना है. यू डोंट नीड टू पास एनीथिंग फॉर द last item. Okay, and it will go until the last, from second index to last. Okay, this is how we do. Let's say if you want to do the reverse of tuple or reverse of list, so just pass colon -1. This is what the syntax, and you will find that tuple will get reversed or list will get reversed. Okay, so if we change the step in the negative direction, meaning we are going to change the direction of this tuple. It will get sliced, but from start to end in the negative, because negative index always start with the -1, then it will be -2, -3, -4, and
it will keep increasing until the last number. So slicing is again very much simple. Same index or syntax we have to use. Let's say if you want to slice out the alternate items, okay, don't do anything, just pass step as a 2. So it will start slicing out the alternate. Let's say 1, 3, and A. 1, 3, and A. Okay, this is what not, this is not actually alternate 1. Okay, so this ये वाला हमें alternate आइटम्स ऑफ टपल्स स्लाइस करके दे देगा. ओके, अगर आपको स्टेप चेंज करना है, थर्ड रखना है, तो आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं. इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन हाउ नो मीनिंग कितने वैल्यूज आपको स्किप करने हैं. हाउएवर द नंबर ऑफ वैल्यूज यू वांटेड टू स्किप, यू कैन स्किप. ठीक है, तो इस तरह से सपोज ये स्लाइसिंग काम करता है. देन अगर आपको मॉडिफाई करना है, ऑब्वियसली एज आई सेड, सिंस टपल इज इम्यूटेबल, वी कैनॉट मॉडिफाई इट, so we cannot add or update or delete the items. Okay, if you try to add new items, okay, there is no way. Okay, so अगर आपको मतलब if you want to do the changes with tuples, there is only one way. तो क्या कर सकते हैं आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन यू कैन मॉडिफाई एंड देन यू कैन कन्वर्ट दैट लिस्ट बैक इनटू द टपल्स. ओके, सो इसके लिए कंस्ट्रक्टर्स की जरूरत होती है. टाइप कास्टिंग मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में डेटा को कन्वर्ट करना है. सो टपल से लिस्ट में, लिस्ट से टपल में, या फिर लिस्ट को सेट में, सेट से टपल में, इस तरह से मतलब अगर कन्वर्जन करना है तो आप यूज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स से हियर आई विल से L is equal to list constructor. I will use constructor मतलब फंक्शन, एंड इसमें मुझे टपल पास करना है. बस t पास कर दिया. ये क्या कर देगा, ये सिंपली जो भी मेरा लिस्ट है, सॉरी जो भी मेरा टपल है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा. एंड देन यू कैन परफॉर्म जो भी हमने लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, मतलब लिस्ट के मेथड्स थे, एपेड का मेथड था, देन एक्सटेंड का मेथड था, ओके, न्यू वैल्यूज ऐड करने के लिए रिमूव का मेथड था, पॉप का मेथड था. तो वो वाले मेथड्स यूज करके आप उसको, या फिर मतलब आपको बस डेटा को चेंज कर सकते हैं. डेटा को चेंज करने के बाद यू कैन कन्वर्ट दिस लिस्ट बैक टू द टपल. ओके, दिस इज द ओनली वर्क अराउंड टू मॉडिफाई द टपल. ठीक है, तो मतलब इतना ही हम कर सकते हैं. टपल कैन बी मॉडिफाइड बाय कन्वर्टिंग टपल्स इनटू द लिस्ट यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल मैंने कंसिडर किया था. ओके, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अनपैकिंग ऑफ टपल. ओके, अनपैकिंग ऑफ टपल मतलब क्या होता है. ओके, इवन अगर आपको नॉर्मली टपल भी क्रिएट करना है ना, तो इतना इस मतलब आप ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो भी पाइथन उसको एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का लिस्ट आप पास कर दोगे तो इट विल कंसीडर what all the separated value as a tuple. Okay, even if you go तो इस तरह से भी लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. if I say print t, okay, not t, okay, you can see the output. अगर मैं t को भी प्रिंट करता हूँ तो ये एक टपल फॉर्मेट में आउटपुट दे रहा है. इफ यू वांट्स टू चेक द टाइप, तो हम यहाँ पे टाइप भी चेक कर सकते हैं. okay, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट. okay, again made a mistake. Type I should use. Okay, so type is class tuple, right? So it will create a tuple. Now if you want to see, if you write like this is what the packing of tuple. This is what the actually packing of tuple. But let's say if you want to do the unpacking, meaning you can assign the tuple to the variables. Okay, so what you can do, you can assign the tuples to the variables. but यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर आप असाइन करोगे तो जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आपके टपल में है, ओके, अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज देखने हैं तो लेट्स से t इज इक्वल टू len ऑफ लेंथ हम ले सकते हैं, लिस्ट का ले सकते हैं, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का हम लेंथ ले सकते हैं. इफ आई रन दिस, ओके, मैंने सॉरी डायरेक्टली प्रिंट करना चाहिए तो मैं रीअसाइन कर रहा था टपल को. इफ आई से दिस रन, तो इसमें 9 आइटम्स है. ओके, इतने आइटम्स तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड
ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल रिड्यूस द नंबर ऑफ आइटम्स। इस तरह से 4 ही आइटम्स मैं रख देता हूँ। अब रखूंगा तो इसमें देखो 4 आइटम्स है। अभी इन आइटम में से सपोज मुझे इनको, अभी ये जो हो गया ये डिफॉल्ट में पैकिंग ऑफ टपल हो गया। ऑटोमेटिकली पाइथन पैकिंग ऑफ टपल कर देगा अगर आप किसी भी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा पास कर दोगे तो, ठीक है। बट लेट्स से आपको इसको अनपैक करना है। अनपैक करना है मतलब इसके जो वैल्यूज है, ये वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल को असाइन करने, तो इसका रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी आपके पास वैल्यूज है एक टपल में, उतने वेरिएबल्स आपको एक लाइन पे क्रिएट करने हैं। लेट्स से इफ आई राइट लाइक दिस ए बी सी डी, ओके, एंड देन इफ आई असाइन द टपल, तो यहाँ पे अगर हम टपल असाइन करेंगे ना तो ये अनपैकिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड आप इफ यू ट्राई टू प्रिंट सी, इफ यू ट्राई टू प्रिंट डी, ओके, एंड इफ आई रन दिस, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से एक एक वैल्यू असाइन की जा रही है एक एक वेरिएबल को। दिस इज व्हाट द अनपैकिंग ऑफ टपल। तो इस तरह का मैकेनिज्म भी है विथ टपल, दैट इज पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल। देन टपल के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो नॉर्मली हम दो टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्केटेंट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन है कि टपल को तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स से दिस इज व्हाट द फर्स्ट टपल T1। डेटा स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन सी सिचुएशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है ये डिसाइड करने के लिए आपको हेल्प होगा। एंड देन लेट्स से इफ आई सेलेक्ट दिस 6 7, देन इफ आई से पाइथन एंड इफ आई से पावर BI, ओके, पावर BI, ओके। तो इस तरह से मैंने दो टपल बनाए हैं। इफ आई वांटेड टू ज्वाइन दिस टपल, सो आई विल राइट लाइक दिस T1 प्लस T2। तो ये प्लस जो है यहाँ पे टपल के लिए कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर बन के काम करेगा। एंड मतलब इस टपल के ऊपर कोई ऐसा मेथड्स है नहीं उनको ज्वाइन करने के लिए। जैसे इसमें मेथड था, हम लूप यूज करके अपेंड को यूज कर सकते थे, या फिर एक्सटेंड को यूज करके दो लिस्ट को कॉन्केटेनेट कर सकते थे। बट यहाँ पे ओनली आपको ये वाला ही यूज करना है, ओके। देन अगेन, ओके, अगर आप इस तरह से लिखोगे, ओके, एक वेरिएबल में ही स्टोर कर देता हूँ, देन लेट्स से प्रिंट T, एंड इफ आई से प्रिंट T1, तो मैं T1 को इसलिए प्रिंट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि ये एग्जिस्टिंग टपल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ओके। तो T1 एज इट इज है, T2 एज इट इज है, और T जो ये आफ्टर कॉन्केटिनेशन एक नया टपल बन रहा है, ओके। ये मॉडिफिकेशन ऑपरेशन नहीं है, हम T1 को चेंज नहीं कर रहे। बट अपन अगर आप लिस्ट को एक्सटेंड करते तो जो भी लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं उस लिस्ट में न्यू आइटम्स ऐड किए जाते हैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा। टपल के केस में क्या होता है, टपल के केस में दो टपल्स के वैल्यूज को मिला के कंबाइन करके एक नया टपल बनाया जाता है, क्योंकि टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। दैट इज इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड दिस मेक्स डिफरेंट than the list, tuples different than the list, okay। तो इतना ही इसमें मतलब डिफरेंस है टपल एंड इसमें। लिस्ट को आप एग्जिस्टिंग लिस्ट को, मतलब यहाँ पे अगर आप L1 प्लस L1 डॉट एक्सटेंड मेथड यूज करके उसमें L2 पास कर दोगे तो L1 को मॉडिफाई किया जा सकता है। बट यहाँ पे टपल को मॉडिफिकेशन नहीं होगा, वो एज इट इज नया टपल बना देगा दो वैल्यूज को लेके, दो टपल्स के वैल्यूज को लेके, ठीक है। देन अदर ऑपरेशंस जो है, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, तो आप लेंथ ले सकते हैं। इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट कितने आइटम्स हो रहे, तो ये दिस शुड रिटर्न मी 8, ओके, प्रिंट व्हाट आई पास्ड, ओके, 8 का हम नंबर का लेंथ नहीं ले सकते क्योंकि दैट इज नॉट इटरेबल, ठीक है। तो इटरेबल मतलब जिसको हम लूप नहीं कर सकते, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को जिसको हम लूप कर सकते हैं, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को, मतलब लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग, यही पाइथन में इटरेबल्स है। इंटीजर इटरेबल नहीं है, हम उसके ऊपर लूप अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। देन इफ आई से, ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज, अगर आप लेंथ ले सकते हैं, देन इफ यू वांट टू सी द काउंट ऑफ एनी स्पेसिफिक वैल्यू, कोई एक वैल्यू है जो नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट हो रही है तो आपको चेक करना है, काउंट लेना है, तो डायरेक्टली काउंट नाम का मेथड है, इफ आई से काउंट, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको वैल्यू पास करना होगा, कौन सा वैल्यू आपको चेक करना है, इफ आई से 1,
1 is not in the text format. If I run this, तो आप देख सकते हैं 1 is exist for 1. If I say 2, 2 is exist for 1 time. Okay, here I will add 2 to 2, and if I run this, तो अभी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स 11 हो गए, बट 2 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है. यहाँ पे 1 है, एंड देन हियर इट इज गेटिंग रिपीटेड फॉर 3 टाइम्स. 1 + 3 4. इस तरह से हमें काउंट मिल रहा है क्योंकि हम कंबाइंड टपल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. देन इंडेक्स, किसी भी वैल्यू का आप इंडेक्स रिटर्न करना चाहते हैं तो जहां पे भी वो वैल्यू फर्स्ट मैच होगी उस वैल्यू का इंडेक्स आपको मिलेगा. इफ आई से प्रिंट, प्रिंट क्यों करते हैं? ओके, ये चीज आपको याद रखनी होगी. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि प्रिंट करने से बस आप उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं. इसको एक्चुअल प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी यूज नहीं किया जाता. ओके, मीनिंग अगर आप कंपनी में कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं तो प्रिंट को यूज नहीं किया जाता. ओके, इफ यू वांट टू सी द आउटपुट ऑन द कंसोल देन ओनली प्रिंट इज यूजेबल, अदरवाइज देयर इज नो नीड. ठीक है, तो इसको मतलब अदर फंक्शंस रहेंगे, आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग अदर लाइब्रेरीज रहेगी. तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस. लेट्स से इंडेक्स ऑफ 2. okay, and if I run this, so it says 2 is exist at 1 index. If I pass the value as a Power BI, okay, and if I run this, so this will say Power BI is exist at 7th index. If you count, okay, this will fulfill the 3 index, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7th. Yes, so this is how we can get the index of any value from tuple. Then tuple multiplication. ओके, सो टपल मल्टीप्लीकेशन क्या है? तो 1, 2, 3, 4. ओके, और आई विल कीप दिस टपल. लेट्स से इफ यू राइट t1 into 3 एंड इफ यू ट्राई टू प्रिंट दिस, तो क्या होगा? ठीक है, एक टपल को 3 टाइम्स रिटर्न किया जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा, उनके वैल्यूज को रिपीट किया जाएगा. इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न द मीनिंग 1 into 3, 2 into 3, ऐसा नहीं होगा. ओके, इफ यू रन दिस यू कैन सी दैट 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, जितने भी वैल्यूज है वो नंबर होंगे, टेक्स्ट होंगे या फिर डेट टाइम होंगे, वो सारे वैल्यूज को रिपीट किया जाएगा सो मेनी टाइम्स. तो ये है टपल मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, देन नेक्स्ट है लूप थ्रू दी टपल्स. तो लूप थ्रू दी टपल्स मतलब क्या है? आपको सपोज लूप्स अप्लाई करने हैं तो लूप्स कोई भी यूज कर सकते हैं. सिंस दिस इज इंडेक्स्ड, अगर ये इंडेक्स सपोर्ट करता है तो आप इसके ऊपर आइदर फॉर लूप आइदर वाइल लूप, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो. ठीक है, एंड लेट्स सी इफ आई अप्लाई फॉर लूप, सो फॉर आई इन, ओके, आई इज मतलब एक काइंड ऑफ लोकल वेरिएबल है विच इज एग्जिस्ट ओनली फॉर द लूप. ठीक है, आई इन t1 एंड इफ आई से प्रिंट आई. ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स. ओके, अगर मैं लूप के बाहर जाके प्रिंट आई को प्रिंट करना चाहता हूं तो ये नहीं काम करेगा. ओके, मतलब लास्ट वैल्यू इसका कंसिडर हो रहा है आई के लिए. ओके, दैट विल बी मेंटेन्ड, मतलब एक वेरिएबल है. ठीक है, तो लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट जो होता है वो मतलब मोस्टली डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है फंक्शंस के साथ. फंक्शंस में जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, एंड ग्लोबल वेरिएबल जो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन रहेगा. जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन बता दिया. ओके, सो लेट्स से 1, 2, 3 टपल लूप, तो कोई भी टपल होगा लूप अप्लाई करने का यही तरीका है. ओके, एंड नेस्टेड टपल करके कंसेप्ट होता है. नेस्टेड टपल मतलब क्या होता है? तो नेस्टेड टपल मतलब टपल्स के अंदर टपल. ओके, तो आपको मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है मतलब क्या क्या डेटा है आपके पास? एक टेबुलर डेटा है. सपोज मान लीजिए एक टेबुलर डेटा है. टेबुलर डेटा है तो फर्स्ट रो जो है उसका, उस रो में नेम या फिर एम्प्लॉय का डेटा है सपोज मान लीजिए. तो सपोज इसमें मैंने EMP ID, देन नेम, देन आई विल से टाइटल,
ओके, तो इस तरह से सपोज मान लीजिए हेडर्स है, ठीक है। अब उसके बाद लेट मी कंसिडर एक्सेल, मतलब इसको किस तरह से टपल में देख, आपका जो डेटा होगा, सपोज मान लीजिए कोई भी डेटा होगा, एक्सेल में डेटा होगा एक टेबुलर फॉर्मेट में, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स से EMP ID नेम एंड टाइटल, मतलब डेजिग्नेशंस होता है। ओके, इफ आई से 1001, दिस इज व्हाट द एम्प्लॉय ID, 102, सॉरी 1002, 1003, ओके, देन ABC, इस तरह से डेटा है। एंड इफ आई से पावर BI डेवलपर, पाइथन डेवलपर, ओके, एंड SQL डेवलपर, ओके, इस तरह से डेजिग्नेशन से टाइटल से। तो इसको जब एक्सेल में मतलब लोड किया जाए, एक्सेल को पाइथन में लोड किया जाएगा, तो इस टेबुलर डेटा को हैंडल करने के लिए ना एक हर एक रो के लिए एक टपल में स्टोर किया जाता है, हर एक वैल्यू। मतलब फर्स्ट रो है, इसको भी रो एज अ रो ही कंसिडर किया जाएगा, ओके, एज अ हेडर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप जब डेटा रीड करते हैं तो वो कंसेप्ट बस इसमें एक्सेल में है, पावर BI में, बट इन केस ऑफ पाइथन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इस हेडर्स को भी एज अ फर्स्ट रो कंसिडर किया जाएगा। ओके, सिमिलरली सेकंड रो आपका ये वाला रहेगा, ठीक है, एंड कॉमा सेपरेटेड आपका नेक्स्ट रो बनेगा। ओके, इफ आई राइट लाइक दिस, तो ये एम्प्लॉय ID, देन सेकंड A, देन मीनिंग नेम, देन वैल्यू ऑफ। तो देन अगर नेक्स्ट आपको रो ऐड करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, देन इफ आई कॉपी दिस, यहाँ पे पेस्ट किया, तो एक्चुअल में मतलब किस तरह से पाइथन टेबुलर डेटा को हैंडल करता है, जस्ट एज एन एग्जांपल, लेट्स से दिस एंड ये। तो इस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मतलब देखो, ये हर एक इसको टपल आइटम कंसिडर कर देगा। इफ यू गो एंड इफ यू ट्राई टू प्रिंट दी T1, तो इसको इंटरनली मतलब एक, जैसे हमने पहले देखा था कि सिंगल वैल्यू पास करने के बाद सेपरेटेड बाय कॉमा, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज पास करते हैं टपल में, तो उसको टपल में पाइथन ऑटोमेटिकली पैकिंग ऑफ टपल हो जाता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं नेस्टेड टपल बन रहा है, एक बाहर नॉर्मल राउंड ब्रैकेट आया है आउटसाइड ऑफ दिस, तो इसको नेस्टेड टपल मतलब टेबुलर डेटा जो होता है, तो इस तरह से एक टेबल का डेटा पाइथन में हैंडल किया जाता है, ठीक है। लेट्स से मतलब फर्स्ट रो इज हेडर्स, दैट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ओके, बट पाइथन को कुछ उससे है नहीं, ठीक है। मतलब पाइथन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप स्पेसिफाई करो हेडर्स, हेडर्स इज इक्वल टू ट्रू, वो सारी चीजें एक लाइब्रेरी में है, जैसे कि पंडास लाइब्रेरी में है, बट यहाँ पे नहीं है। नॉर्मल पाइथन में आप डील करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। बट टेबुलर डेटा को नेस्टेड टपल में हैंडल किया जाता है, okay? इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट में मतलब यहाँ पे बनाया कि इफ यू हैव अ टेबुलर डेटा देन नेस्टेड टपल्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट रोज एंड कॉलम्स। तो कॉलम्स मतलब क्या है, ये देखो, ये फर्स्ट एम्प्लॉय ID, उसका वैल्यू, देन सेकंड एम्प्लॉय ID, इस तरह से आपको मतलब एक कॉलम होगा जो फर्स्ट 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 वैल्यू को रेफर करेगा, ठीक है। तो लेट्स से आपको यहां से इसके ऊपर लूप अप्लाई करना है, नॉर्मली सिंगल इसके ऊपर तो लूप अप्लाई कर सकते हैं। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन से फॉर आई इन T1, ठीक है। ये लूप अप्लाई करने के बाद इफ यू गो एंड इफ यू प्रिंट आई, तो आई के अंदर क्या होगा, इसमें से एक एक टपल को निकाल के स्टोर किया जाएगा, मतलब एक्सट्रैक्ट करके, ओके, क्योंकि लूप का काम ये, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरह से हमें रोज मिल रहे हैं जो हमारे एक्सेल के टेबुलर डेटा में है, इसी तरह से मतलब डेटाबेस में भी डेटा रहेगा, सीक्वल डेटाबेस में तो इसी टाइप में डेटा रहेगा, टेबल फॉर्मेट में डेटा रहेगा, इसी वे से उसको हैंडल किया जाता है। बट डेटा जब रीड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे इस तरह से लिस्ट भी रहता है,
ओके, टपल हो या लिस्ट हो, इट डजेंट मैटर। ओके, रहेगा तो नेस्टेड ही फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस तरह से डेटा आता है। एंड देन इफ यू वांट्स टू गो थ्रू द वैल्यूज, ठीक है, आपको इसमें से क्या चाहिए, इसमें से आपको ओनली एम्प्लॉय आईडी चाहिए, मतलब फर्स्ट कॉलम का डेटा चाहिए। तो आप किस तरह से हैंडल करोगे, तो फर्स्ट कॉलम का डेटा एक टपल है, इसमें जीरो इंडेक्स पे हर एक टपल के, ओके, ये एक टपल है, इसमें फर्स्ट मेरा हेडर है एम्प्लॉय आईडी, बट वो कौन से इंडेक्स पे बैठा है, वो जीरो इंडेक्स पे बैठा है। तो जीरो इंडेक्स पे बैठा है तो हम इस तरह से लिखेंगे। लेट्स से ये सेकंड टपल है, सेकंड टपल में भी अगेन एम्प्लॉय आईडी जो है उसका वैल्यू, मतलब फर्स्ट एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, राइट, तो वो भी जीरो इंडेक्स पे, तो ये सीक्वेंस हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है। एंड इफ आई रन दिस, तो आपको एक कॉलम के वैल्यूज, सिंगल, किसी भी सिंगल कॉलम के वैल्यूज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। देन इसके ऊपर कुछ फिल्टरिंग लगाना है, कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो उसका इंडेक्स फाइंड करके, ओके, आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट इनके सब टपल नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर नया ऐड करना है डेटा तो नया ऐड कर सकते हैं, ओके, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बट लेट से नेस्टेड है तो आपको नेस्टेड लूप, तो यहाँ पे हमने लूप अभी तक देखा नहीं, मैंने बस इंडेक्स फर्स्ट वैल्यू, तो लेट से आपको सारे वैल्यूज एक्सेस करने हैं, सारे वैल्यूज एक्सेस करने हैं, तो इन दैट केस आप और एक लूप लगा सकते हैं आई के ऊपर, क्योंकि आई इज गोइंग टू होल्ड द वन ऑफ द टपल, एक टपल है, देन टपल है तो उसके ऊपर हम लूप अप्लाई कर सकते हैं। देन इफ आई से प्रिंट जे, तो इस तरह से डेटा आपको मिलेगा, ओके। इसके बाद का जो भी, मतलब एम्प्लॉय आईडी नेम, इसके बाद का जो भी लॉजिक होता है, वो जो इस जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो इधर मतलब स्लाइसिंग करना है तो सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पे सिंपली आई विल से प्रिंट आई ऑफ, आई ऑफ, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी नेम, ये दो ही कॉलम चाहिए आपको, राइट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल से 0 2, मीनिंग इससे क्या होगा, इनिशियल क्या होगा, 0 होगा, 0 and 1 तक जाएगा, 2 हमारा अपर बाउंड है, अपर बाउंड को पाइथन इग्नोर कर देगा, देन स्टेप 1, राइट। तो आपको दो ही वैल्यू मिल जाएंगे, इस तरह से टपल्स मिल जाएंगे, राइट। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बेसिस पे हमें सिलेक्शन करना होगा कि हमें किस तरीके से करना है, ओके। एक चीज को प्रोग्रामिंग में करने के लिए आप 1000 सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, ओके। यू नीड टू थिंक ओवर इट, हाउ टू बिल्ड द लॉजिक फॉर स्पेसिफिक टास्क। एंड मतलब जहां तक डेटा के फील्ड में है, आउटपुट से मतलब होता है, अगर आपका आउटपुट सही आ रहा है, नंबर सही आ रहे हैं, देन आपने क्या कोड लिखा है डजंट मैटर, ठीक है। तो आप उसको घुमा फिरा के करो या फिर शॉर्टकट में करो, जैसे भी जो भी लॉजिक यूज करना है वो करो, आउटपुट से मैटर रहता है, ओके। टू ऑटोमेट दी रिपोर्ट्स, पाइथन को यूज किया जाता है, मतलब आपको एक्सेल ऑटोमेशन करना है तो भी पाइथन फुल्ली सपोर्ट करता है, ओके। आई विल, मीनिंग वी विल गो थ्रू दैट, बट पहले थोड़ा सा फंक्शन तक हम बेसिक देख लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम टपल्स के ऊपर सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट्स go to the Google and try to find out the questions. Even in my case, okay, I have a list of questions. Okay, if I go to the तो एक कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई है, आई विल शेयर दिस विथ यू। आपको भी ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चंस है, मतलब जैसे कि क्रिएट टपल विथ 3 एलिमेंट्स, तो टपल क्रिएट करना इट्स नॉट अ बिग डील। एक्सेस सेकंड एलिमेंट तो आप इंडेक्स यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन टपल और नॉट,
तो लेट्स से आपने एक टपल बनाया है एंड आपको चेक करना है कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट है या नहीं है, तो किस तरह से कर सकते हैं? लेट्स से create a tuple. Question is create a tuple with, I will say, fruit names and check apple is present in the tuple or not. ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो आपको एक टपल क्रिएट करना है, लेट्स से टी इज इक्वल टू, एंड देन आप इसमें फ्रूट्स के नेम डाल सकते हैं, बनाना, ओके, देन ओके लाइक watermelon, then I will say apple. तो इस तरह से आपने एक लिस्ट बनाया हुआ है फ्रूट्स नेम का, ठीक है। देन इफ आई से स्ट्रॉबेरी, तो इस तरह से एक टपल बनाया हुआ है एंड इसमें आपको चेक करना है इफ एप्पल इज एग्जिस्ट और नॉट। तो किस तरह से कर सकते हैं? यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ लूप आल्सो, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ membership operator also. So what you can do, let's say if I print this, so this will return me a tuple and किसी भी कलेक्शन के साथ, किसी भी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। लेट्स से ट्रू एंड फॉल्स में आपको अगर वैल्यू चाहिए तो यू कैन राइट लाइक दिस, एप्पल इन टी, ओके, एंड दिस विल रिटर्न यू द बुलियन वैल्यू, क्योंकि ये मेंबरशिप ऑपरेटर है तो ये रिटर्न करेगा, ओके, दिस इज ट्रू। तो ये एक फर्स्ट वे है, ओके। अनदर वे क्या है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, फॉर आई इन टी एंड देन इफ आई इज इक्वल टू, आप यहाँ पे एप्पल है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द सेकंड वे। तो इट्स अप टू यू हाउ टू गो टू दी solution. If I say print here, I will print true or any value if you want to print, you can print, okay. See, if I change the value, you will not get anything from this loop. Why? Because apple one is not exist. If this is not exist, then this block will not be executed, and if the block will not get executed, nothing is going to print this loop, right? It will not print anything because हमने else block नहीं बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस सॉल्यूशंस, तो ये जो है लूप एंड इफ एंड उसके साथ ऑपरेटर्स, तो ये आपको कंप्लीटली डायनामिक लॉजिक बनाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से फाइंड द लेंथ ऑफ टपल इन क्वेश्चन 1, ओके, तो लेंथ फाइंड कर सकते हैं, एलियन यूज करते, सिंपल क्वेश्चंस है, ओके। एंड ये भी आपको क्वेश्चन मतलब इंटरेस्टिंग है कि वाई, ओके, कैन यू चेंज द वैल्यू ऑफ second element to 6? Okay, obviously we cannot change the value of tuple, and then आपको यहाँ पे y का है, तो y मतलब इसका मीनिंग है टपल कैरेक्टरिस्टिक्स है immutable, so we cannot update the values of tuple element, okay. then यहाँ पे next ऑपरेशन है create two tuples, tuple 1 and tuple 2 with the sum elements, okay, जो भी एलिमेंट लेने हैं, एंड देन कॉन्केटेनेट देम, तो प्लस ऑपरेटर यूज करके हमने देखा है कुछ टाइम पहले। देन क्रिएट टपल विद द नंबर्स विद सम डुप्लीकेट वैल्यू एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स द स्पेसिफिक वैल्यू अपीयर्स, ओके। ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट वी डिड विद द लिस्ट आल्सो। तो डुप्लीकेट हटाना एंड देन उसके लिए काउंट लेना यूजिंग काउंट मेथड, तो ये हमने किया है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी मच सिमिलर टू द लिस्ट क्वेश्चंस, ओके। ओनली इसमें चेंज है कि आप इसमें अपडेट नहीं कर सकते, टपल्स एंड लिस्ट के बीच में उतना ही डिफरेंस है। लेट्स से क्रिएट अ टपल मिक्स्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड नंबर एंड सॉर्ट द एलिमेंट्स विद इन द टपल, ओके। तो ये भी आप कर सकते हैं, बट हाउ टू
सॉर्ट। ओके, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन विथ नंबर्स। सो बीच बीच में मैं नंबर ऐड कर लेता हूँ, 2 3, then I will say 4 5 or 10, anything is fine. Now if you say t dot sort, नहीं होगा। Okay, let's say if I run this, okay, tuple object has no attribute, क्योंकि टपल के हम, जैसे मैंने बताया कि ये इम्यूटेबल स्ट्रक्चर है, तो इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। देन हाउ टू सॉर्ट, राइट, देन हाउ टू सॉर्ट। तो इसको मतलब सॉल्यूशन फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट यस, ओके, तो यू नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, जस्ट गूगल इट, आपको एक सिंगल लाइन में आंसर मिल जाएगा इसका। ओके, हाउ टू सॉर्ट द टपल्स और एलिमेंट्स विद इन द टपल्स। सिंपल क्वेश्चन है, लिस्ट के साथ आप सॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं, बट इवन इन केस ऑफ टपल ऑपरेशन आई नेवर शोन यू सॉर्ट मेथड। तो ये सॉर्ट डायरेक्टली हम सॉर्ट नहीं कर सकते, बट देयर इज अ वर्क अराउंड। तो किस तरह से सॉर्ट करोगे, तो इसको सॉर्ट करना है तो आपको या तो इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, देन यू कैन सॉर्ट एंड देन यू कैन कन्वर्ट बैक दिस टपल टू द लिस्ट। ओके, दैट इज वन वे। इफ यू फाइंड समथिंग एल्स, जस्ट ट्राई टू गेट दैट। ओके, देन कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो यू कैन सिंपली आस्क मी, कोई भी मतलब आपको सॉल्यूशन मिलता है, देन यू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सॉल्यूशन, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग, let me know, I will tell you, okay, how that is working. Okay, then nested tuple with multiple tuples as its element and access element from one nested tuple। तो nested tuples के एलिमेंट्स किस तरह से एक्सेस करने हैं हमने देखा था। कि और एक चीज है, लूप तो यूज कर सकते हैं, बट लेट्स से यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से एक टपल है, देन सेकंड टपल है 4 5 6, मुझे 6 वैल्यू को एक्सेस करना है, 6 वैल्यू को एक्सेस करना है। ओके, इवन दिस इज एप्लीकेबल फॉर द लिस्ट आल्सो। ओके, तो सबसे पहले मतलब इफ यू प्रिंट टी, तो आपको एक नेस्टेड टपल मिल जाएगा, राइट। आपको इसमें से कौन सा टपल में इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली सेकंड टपल में इंटरेस्ट है। सेकंड टपल का इंडेक्स क्या होगा, तो फर्स्ट इंडेक्स होगा, राइट, क्योंकि फर्स्ट टपल का इंडेक्स 0 रहेगा। दिस इज अगेन मीनिंग लिस्ट आइटम ऑफ टपल, तो इसका इंडेक्स 1 होगा। इफ आई रन दिस, तो मुझे ये मिलेगा। देन इसमें से आपको क्या चाहिए, इसमें से आपको चाहिए थर्ड आइटम। थर्ड आइटम का इंडेक्स क्या होता है, आइडियली सेकंड आइटम होता है, मतलब सेकंड इंडेक्स होता है। तो इसको रन करने से आपको इस तरह से भी हम नेस्टेड टपल के वैल्यूज को लेके आ सकते हैं। जब हम लूप्स वगैरह अप्लाई करते हैं, तो इसी के लिए लूप्स अप्लाई करते हैं। ओके, जब हम इंडेक्स वगैरह यूज करके लूप्स बनाना चाहते हैं बाय एनी रीजन, ठीक है। तो लॉजिक बनाने के टाइम ऑब्वियसली आपको लेंथ ऑफ आउटर टपल, देन लेंथ ऑफ इनर टपल लेके ही आपको बनाना पड़ेगा। तो वो टाइम पे आपको डेफिनेटली आइडिया मिल जाएगा। ओके, then given a tuple of number tuple, find minimum and maximum value। so you can try this, how to find the minimum value, how to find the maximum value। tuple को सॉर्ट नहीं कर सकते, अगेन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको उसको सॉर्ट करना होगा, तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद सिंपली आप फर्स्ट आइटम एंड लास्ट आइटम स्लाइस आउट कर सकते हैं। ओके, वो आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम होगा। देन अनपैकिंग ऑफ टपल, अनपैकिंग हमने देखा है। ओके, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इवन कभी कभी पूछा जाता है इन केस ऑफ इंटरव्यू, स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग टपल अनपैकिंग। ओके, टपल अनपैकिंग, लेट्स आपके पास वेरिएबल है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब मुझे इसका वैल्यू चेंज करना है। अब मुझे इसका वैल्यू चेंज करना है, मतलब क्या करना है, मुझे a को b को a करना है, a इज इक्वल टू 20 करना है, b इज इक्वल टू 10 करना है। ओके, तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक टपल पैकिंग करना होगा। हियर आई विल से a एंड b, राइट, एंड देन यहाँ पे b कॉमा a, राइट, एंड देन यहाँ पे अनपैकिंग करना होगा, आपका वैल्यू स्वाइप होगा। अब अगर आप यहाँ पे आप प्रिंट करोगे प्रिंट b एंड प्रिंट a, तो आपका वैल्यू आपको उल्टा मिलेगा, राइट। यहाँ पे मैंने b इज इक्वल टू 20 लिखा है, बट यहाँ पे b इज इक्वल टू 10 मिल रहा है, राइट।
तो ये वे है टू स्वैप द वैल्यूज। ओके, ये क्वेश्चन नहीं है अभी हमारा। स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स इन पाइथन। Okay, then remaining questions you can try. Okay, what is the questions? Let's say given a list of tuples containing name and age of people, filter and create new list of people who are above 30. Okay, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपको फिल्टर अप्लाई करना है, राइट। इसमें क्या है, एक लिस्ट दिया है आपको, गिवन अ लिस्ट ऑफ टपल्स। लिस्ट ऑफ टपल्स मतलब नेक्स्ट टपल भी ले सकते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ वी कैन बिल्ड द लॉजिक। ओके, सी इफ आई से टी इज इक्वल टू, यहाँ पे नेम है ए, लेट्स से एज है 30, नेम है बी, एज है 60। ओके, देन लेट्स से नेम है सी, एज है 40। लेट्स से नेम है डी, एज है 45। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टपल हमने नेस्टेड टपल बनाया है, लिस्ट ऑफ टपल्स हमें मिल रहा है, मतलब जिसमें नेम एंड ये है। इफ आई रन दिस, नेम एंड एज है। तो अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि लेट्स से आई हैव टू फाइंड द गिवन लिस्ट ऑफ टपल्स कंटेनिंग, गिवन लिस्ट ऑफ tuples containing the name and age of filter. Okay, filter and create new list of peoples who are above. Okay, तो आपको एक न्यू लिस्ट बनाना है। अभी टपल्स आप टपल भी बना सकते हैं। ओके, बट लेट्स से आपको लिस्ट बनाना है तो लिस्ट भी बना सकते हैं। एल इज इक्वल टू एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं हम। ओके, देन आपको इसके इसके ऊपर लूप अप्लाई करना होगा। सो आई विल से फॉर आई इन टी। अब मुझे चेक करना है इस आई में। ओके, आई में जो सेकंड है, सेकंड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स मतलब क्या, सेकंड वैल्यू है जिसका इंडेक्स 1 है। सो इफ आई, आई ऑफ 1, ओके, इज ग्रेटर देन 30। ओके, एक रैंडम कंडीशन ले रहा हूं मैं। एंड देन इफ आई से हियर एल डॉट append, एल डॉट append आई, राइट। एंड देन इफ आई से प्रिंट यल, तो आपको इसमें से फिल्टर होकर डेटा मिलेगा जिसका भी एज 60 से ज्यादा है उतना ही डेटा मिलेगा, 30 एंड उससे कम वाला नहीं मिलेगा। ओके, इवन इफ आई ऐड वन मोर ए बी सी डी ई विथ एज 25 एंड इफ आई रन दिस, तो आपको फिर भी यही आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, फॉर आई इन टी, मतलब इसमें से एक एक टपल को हम स्लाइस कर रहे हैं। आई के अंदर अगेन टपल है, तो मैंने इंडेक्सर सिंटैक्स यूज करके फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू है उसको चेक किया। ठीक है, उसको चेक किया कि वेदर दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 30 और नॉट। ठीक है, अगर ये वैल्यू 30 है, देखो हर एक आई के लिए, मतलब हर एक टपल के लिए एक बार लूप रन हो रहा है, तो उस आई की वैल्यू मैं इस लिस्ट में स्टोर करूंगा। अगर ये कंडीशन सही होता है तो मतलब दिस इज ट्रू, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन आई एम गोइंग टू अपेंड, अदरवाइज आई डोंट वांट्स टू अपेंड, राइट। तो इस तरह से मैंने फिल्टर अप्लाई करके एक लॉजिक बनाया है दैट इज गोइंग टू रिटर्न अस अ न्यू लिस्ट ऑफ टपल्स, राइट, हुज एज इज ग्रेटर देन 30 और 60। जो भी आपको क्राइटेरिया यूज करना है वो क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टपल्स। तो इस तरह से आप टपल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।